Topic is Society, Law and Ethics. Introduction to Cyber Safety. Cyber safety is the safe and responsible use of Internet and ICT, information and technology, communication technology. Cyber safety is about to not only keeping information safe and secure, but also being responsible with that information, being respectful of other person or other people online. As per cyber safety, people are advised to use good etiquettes, that is, internet etiquettes or manners. Now, you all know you cannot write anything negative or anything which the other person is getting disturbed after reading that you are not allowed to write. So, that is called cyberbullying. Then you are not allowed to open and see the other people's content or whatever it is called cyber stalking, cyber trolling. So all these are not allowed. So net etiquettes का meaning क्या है? Manners. You all know what are the manners already at home. Your parents, your teachers are always teaching you that communication plus the other manners you already know, which you will not feel good. You cannot use those words for others, even in a joke also. If the other person is not comfortable in that, ज़्यादातर क्या होता है फ्रेंड सर्कल में जोक्स के उसमें तुम लोग कुछ भी बोल जाते हो. इट इज़ नॉट अलाउड. ठीक है. और अगर ये इंटरनेट में कर रहे हो, यहाँ पे प्रूफ रह जा रहा है कि वॉट एवर यू हैव told about that other person, that can be used negatively. So we have to behave properly while using internet. So all the etiquettes, manners you have to follow. Next is safely browse the web. Viruses and malware spread easily and quickly through websites, web browsing. Through clicking over the links found on web pages or in email mistakenly, our computer may be infected. An infected computer can run slow, barrage us with pop-ups, download other programs without our permission, or allow our sensitive personal information to others. Now, you all know that whenever any link, now internet is open to you, many contents, many people worldwide. Many positive people are uploading, many negative people are uploading, many ads, scams, adware scams are there. So many things you will get in internet. Now you have to be careful. Some pop-ups will be there which will try to attract you. You have won a lottery of this much amount and you will click on that link and you know that all your sensitive information, personal information can be collected by somebody who has sent you that link. So they know how to collect the information. किस लिंक को तुम क्लिक कर सकते हो, उन लोगों के पास सारे फुटप्रिंट, सारे उन लोगों के पास आइडियाज़ है कि ये स्टूडेंट है तो इसका ये कोर्स सर्च करेगा, ये अपने फ्यूचर के लिए कॉलेजेस सर्च करेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म सर्च करेगा, तो उसी के थ्रू उन लोग भेजते हैं. तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग. इसमें नॉर्मली पता ही है ऑल द सेफ्टी रूल्स. HTTPS सिक्योर वाला जो है वहीं पे जाके हमको क्लिक करना पड़ता है और हमेशा इनकॉग्निटो मोड में ओपन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. टिप्स फॉर सेफ वेब ब्राउजिंग. कॉमन सेंस. नेवर रिस्पॉन्ड टू स्पैम्स और एंड डिस्क्लोज पर्सनल इन्फॉर्मेशन. कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे उनके साथ शेयर नहीं करना है. यूज एन एंटीवायरस एंड फायरवॉल. इट प्रोवाइड रियल टाइम मैलवेयर प्रोटेक्शन. आजकल बहुत सारे फ्री ऑनलाइन एंटीवायरस, लेकिन हाँ एंटीवायरस ऑनलाइन कुछ ऐसे एंटीवायरस है जिसको डाउनलोड करने के बाद तुम्हारा लैपटॉप या उसका स्पीड स्लो हो जाएगा. तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट विच इज़ द बेस्ट वन एंड देन ओनली यू हैव टू डाउनलोड. क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स कि कोई भी उसको क्रैक न कर सके. माइंड योर डाउनलोड्स. बी श्योर टू रिव्यू ऑल प्री चेक्ड बॉक्सेस. प्रॉम्प्ट
add, download and uncheck any extra applications which we don't want to install. जब भी कुछ डाउनलोड कर रहे हो अच्छे से पढ़ के इंस्ट्रक्शंस को फिर डाउनलोड करोगे. किस बॉक्स को चेक करना है, किस बॉक्स का टिक हटाना है, अनचेक करना है, अच्छे से चेक करके फिर डाउनलोड करोगे. क्योंकि जितने ज़्यादा टिक्स कर रहे हो उतना ज़्यादा उसमें मेमोरी लगेगा. स्टे अपडेटेड, अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस एंड एंटीवायरस. हमेशा जब भी वो अपडेट मांगता है तुरंत, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है तुरंत अपडेट कर दोगे. क्यों? क्योंकि अपडेट करने के बाद तुमको जो अभी न्यू वायरसेस है उससे खतरा कम हो जाता है. Identity protection, protection against theft of personal information over cyber space without consent, usually for financial gain, is known as identity protection. Tips to prevent identity protection. ज़्यादातर पैसों का ट्रांजैक्शन जहाँ पे होता है वहीं पे ये सब का खतरा रहता है. और कुछ इम्पॉर्टेंट, हाँ, बड़े बड़े लोगों को खतरा रहता है, उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन उनको ट्रोल किया जाता है. तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है तुम लोग को. Use strong passwords and pins and keep passwords and pins safe. Create login password for all devices. Beware of phishing scams. क्या क्या कौन से phishing scams है ये तुम लोग को पता होने चाहिए, ताकि वो अगर तुम्हारे साथ हो ये ओपनली डिस्कस करना चाहिए. जैसे पहले होता था कि लॉटरी के लिए फ़ोन आता था, केबीसी से फ़ोन आता था. मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आए हैं, मैं केबीसी से बोल रहा हूँ. और मीन्स ये सारे फ्रॉड्स आपस में डिस्कस करने चाहिए. डिस्कस करने से क्या होता है, कौन कौन से स्कैम्स अभी चल रहे हैं ये पता रहता है, तो एक दूसरे को हम प्रोटेक्शन दिला सकते हैं या फिर नॉलेज गेन कर सकते हैं. रीस्टोर ओल्ड कंप्यूटर्स टू फैक्ट्री सेटिंग्स. इनक्रिप्ट योर हार्ड ड्राइव. चेक सिक्योरिटी व्हेन शॉपिंग ऑनलाइन. आजकल 2 चेक्स रहते हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. टेक केयर व्हेन पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया. क्या पोस्ट कर रहे हो ध्यान से करना. कहीं घूमने जाना है, पहले से ही पोस्ट कर दोगे कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो चोर को सबको पता चल जाएगा कि ये जाने वाला है. घूम के आओ, उसके बाद पोस्ट करो कि हाँ मैं यहाँ पे गया था और ये रहे पिक्स. ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद चोर आएगा तो तुम घर में रहोगे. ठीक है. सिक्योर योर होम वाईफाई नेटवर्क एंड अवॉइड यूजिंग इनसिक्योर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स. पब्लिकली जब रेल वाईफाई या पब्लिक वाईफाई जब यूज़ कर रहे हैं तब थोड़ा ध्यान देना. तब कोई भी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करना है उस समय. Next, confidentiality of information allows authorized users to access sensitive and secure data, maintains the confidentiality of information. जब तुमको कोई भी चीज़ दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, कंपनी में जब काम करोगे तुम लोग के साथ बहुत चीज़ें शेयर करेगी कंपनी, तो वो तुमको कॉन्फिडेंशियल रखना है. टिप्स टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल. कैसे रखना है? यूज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. मल्टी चेक्स रहते हैं, जैसे आजकल हम लोग 2-वे OTP आता है, उसके बाद पिन डालते हैं, बहुत सारे चेक्स रहते हैं. तो ऑथेंटिकेशन, किसी को ऑथेंटिकेट कर रहे हो तुम्हारा सॉफ्टवेयर या तुम्हारा काम करने के लिए, तो उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करोगे. आजकल जैसे ईमेल सब में मल्टी फैक्टर्स आ गए हैं. Masking. The free version of MaskMe creates an alternate email address whenever a website asks for a user's email. आजकल जब ईमेल बनाते हो उस समय भी देखना, बहुत सारे उसमें अलग अलग डेटा पूछा जाता है. emails from that site can be accessed via MaskMe inbox or forwarded to a user's regular email account. प्राइवेट ब्राउजिंग एंड सेफ ब्राउजिंग, ये हम लोग ज़्यादातर आजकल हम लोग प्राइवेट ब्राउजिंग ही करते हैं और इनकॉग्निटो मोड में ही करते हैं. इंक्रिप्शन, ज़्यादातर इंक्रिप्टेड पासवर्ड जब डालोगे कोशिश करना कि इंक्रिप्टेड ही रहे, दिखे ना किसी को. ठीक है, ये सब ऑलरेडी पता है इसलिए मैं जस्ट शॉर्ट में एक बार दिखा दे रही हूँ. अभी जो एग्जाम में जो आने वाले, क्योंकि ये एक्चुअली वाइवा में सब पूछे जाएंगे. ये जितने क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस वाइवा में भी पूछे जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा एक बार देख लोगे. अदर देन पाइथन यू आर हैविंग दिस ऑल्सो इन योर सिलेबस. एनुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में रहेगा और वाइवा में भी अभी जो होगा
उसमें सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साइबर सेफ्टी, सोशल नेटवर्क्स तो पता ही है तुम लोगों को। हाँ, ये बिजनेस पर्पज से सब लोग यूज करते हैं। हो सकता है 10 साल बाद तुम भी यूज करोगे। सपोज कंपनी को प्रमोट करना है या कोई एड बनाना है, कोई प्रोडक्ट सेल कर, कुछ भी, तो ये सब हम यूज करते हैं। अब यूज करते समय हमको क्या क्या उसमें डेटा डालना है सेफ यूज करने के लिए, सो ये पता होना चाहिए। इसमें भी वही है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, डिफरेंट पासवर्ड फॉर डिफरेंट सोशल मीडिया, पासवर्ड प्रोटेक्ट योर डिवाइस में भी आजकल हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्शन डाल देते हैं। बी सिलेक्टिव विथ फ्रेंड रिक्वेस्ट। इसमें नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड का फेस दिख रहा है, तो देख लो ध्यान से कि वो सच में तुम्हारा फ्रेंड है कि नहीं, और तभी सिलेक्ट करो। हाँ, बिजनेस पर्पस से बहुत लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे बाद में जाके, क्योंकि उनको फेमस होना है और उनको सोशली कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो उस समय उन लोग अननोन लोगों को भी सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए उन लोग अलग अकाउंट खोलते हैं। जो भी सोशल मीडिया पे उन लोगों का अकाउंट रहेगा वो देखना खाली कमर्शियल यूज के लिए रहेगा, तब उन लोग सबके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो अपना है, अपने फैमिली के डिटेल्स को डाल रहे हो, वहाँ पे सबका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना है। बी केयरफुल वाइल शेयरिंग समथिंग, बिकम फेमिलियर विद द प्राइवेसी पॉलिसीज ऑफ द सोशल मीडिया साइट्स, इंस्टॉल एंटीवायरस, लॉग ऑफ व्हेन डन, काम हो जाने के बाद लॉग इन मत रखना। क्रिएट अ स्मॉलर सोशल नेटवर्क स्मॉल जितना होगा उतना अच्छा है। नेक्स्ट, साइबर ट्रोल एंड साइबर बुलिंग। इसके 2-3 क्वेश्चंस आएंगे। साइबर बुलिंग, उसमें केस स्टडी दिया रहेगा और पूछा जाएगा क्या है, तो तुमको ये डिफरेंस पता होने चाहिए एक एक के बीच में। तुमको आंसर में 1 वर्ड लिखना है, या तो बुलिंग लिखना है, या ट्रोल लिखना है, या स्टॉक लिखना है, या हैरेसमेंट लिखना है। तो इसमें क्या है, सब एक जैसे दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से कि हाँ, कुछ भी हम लिख रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, थ्रेट, ह्यूमिलिएट, तो वो बुलिंग हो जाएगा। ट्रोलिंग, हम दूसरे के उसमें हम उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, एंटरटेन, टू आर्ग्यूमेंट, टू अपसेट विक्टिम, टू गेट अटेंशन, ये ट्रोलिंग हो गया। स्टॉकिंग क्या होगा, डूइंग रिसर्च इन एवरी एस्पेक्ट। मैंने सपोज मेरे को किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में मेरे को पता लगाना है, तो मैंने उसके सारे सोशल अकाउंट्स को खोल के उस पर रिसर्च किया कि ये कहाँ घूमना पसंद करता है, क्या खाना पसंद करता है, तो इसको स्टॉकिंग, उस इंसान के बारे में मैंने पूरा रिसर्च किया, इसको स्टॉकिंग बोलेंगे। हैरेसमेंट, कंटिन्यूसली contacting the person online even though they don't want you to, ठीक है। इसके अगेंस्ट में एक्चुअली FIR लॉन्च होता है, हैरेसमेंट और ये सब के, तो इसीलिए ये 4 अलग अलग है। ज़्यादातर इसमें बुलिंग के क्वेश्चंस आते हैं, स्टॉकिंग के और ट्रोलिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको समझ लोगे। अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ सोशल नेटवर्क, ये तुम लोग को पता ही है कौन कौन से सोशल नेटवर्क है, किस किस काम में आता है। आजकल जैसे व्लॉगिंग के अलग है, ब्लॉगिंग के अलग है। व्लॉग और व्लॉग में वीडियो रहता है, ब्लॉग में वेबसाइट्स रहते हैं, ठीक है। यूट्यूब से क्या, सारे के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपस में तुम लोग डिस्कस करोगे तो पता रहेगा। नाउ, अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ सोशल नेटवर्क, प्रॉब्लम्स टू अवॉइड, क्या क्या अवॉइड करना है। और ये चीज़ याद रखना कि वॉट एवर यू आर डूइंग, तुम अगर डिलीट भी कर दोगे, ये सारे फुटप्रिंट्स रहते हैं। नॉर्मली क्या होता है आजकल, जब इंटरव्यू के बाद कंपनीज दे विल ट्राई टू सी व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन, क्लियर। सो नॉर्मली मैंने देखा है या सुना है कि कंपनीज जब देखती है कि इसका नेगेटिव पूरा फुटप्रिंट है, तो फिर वो लोग कैंसिल कर देते हैं कि सॉरी, यू आर नॉट हायर्ड, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि फुटप्रिंट्स तुम्हारे सब रिकॉर्ड होते हैं। तुम जो भी काम कर रहे हो इंटरनेट में, जो भी वीडियोस, जो भी कुछ है, सब कुछ रिकॉर्ड हो जा रहा है। इन फ्यूचर व्हेनेवर कंपनी विल हायर यू, if they want, they can see your footprints and they can see what all interest you have. Next, ये तो बाकी तो पता ही है तुम लोग को। स्ट्रेंजर जो होते हैं, हेल्प करने के लिए भी कोई आ जाएगा कि मैं तुम्हारा, जब तुम लोग एग्ज़ाम देने जाओगे IIT का या किसी भी एग्ज़ाम सेंटर के बाहर लाखों लोग खड़े रहते हैं, ये फ़ोन नंबर, तुम्हारा फ़ोन नंबर मांगेंगे, एक फॉर्म भरने बोलेंगे,
और उस फॉर्म में तुम्हारा फ़ोन नंबर मांगा जाएगा. दे विल ट्राई टू हेल्प यू विथ एडमिशन. कॉलेजेस में तुम्हारा यहाँ करा दूंगा, वहाँ करा दूंगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा. और तुम्हारा फ़ोन नंबर लेने के बाद फिर वो कॉलेजेस के ऐड उसमें डाला. तो स्ट्रेंजर्स को अपना डेटा नहीं देना है. ठीक है. नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ सोशल नेटवर्क. सोशल नेटवर्क में हम क्या डाल सकते हैं, इसमें क्या क्या है. स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स. नॉर्मली अगर ये गलती मेरे से भी होती है, सबसे होती है. व्हाट्सएप में अगर जैसे ही आ जाता है सीबीएसई ने ये टाइम टेबल दिया है, जाके मैं सीबीएसई में चेक नहीं करती हूँ, मैं सीधे उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ. दैट इज़ रॉन्ग. हो सकता है सीबीएसई ने उस टाइम टेबल को दिया नहीं है, वहाँ किसी फ्रॉड किसी ने वो टाइम टेबल बना के व्हाट्सएप में शेयर करना शुरू किया और वो शेयर हो गया ऑल ओवर इंडिया. फिर सीबीएसई नोटिस निकालती है कि जो भी शेयर हो रहा है वो फ्रॉड है. तो इसीलिए अगर कुछ शेयर हो भी रहा है, हमको जाके ऑफिशियल वेबसाइट में देखना चाहिए, सीबीएसई के वेबसाइट में. जैसे नेक्स्ट ईयर तुम्हारा 12th रहेगा, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है. कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सुनना है. चुपचाप सीबीएसई स्कूल के तरफ से तो एग्जैक्ट डेटा जाता ही है हमेशा. फिर भी सीबीएसई साइट में जाके चेक कर लोगे कि टाइम टेबल जो है वो सही है कि नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन है. ठीक है. तो र्यूमर्स को स्प्रेड नहीं करना है. ये होता है कभी कभी, मैं तो कोशिश करती हूँ, फिर भी कभी कभी हड़बड़ी में टाइम टेबल आया और मैंने फॉरवर्ड कर दिया और मैंने देखा भी नहीं कि सीबीएसई में नहीं इश्यू था वो. फिर किसी ने प्रॉम्प्ट किया कि अरे तुमने जो फॉरवर्ड किया वो तो सीबीएसई साइट में नहीं है. तब जाके मैंने खोल के देखा. तो ये हम लोग से गलती होती है, तो इसको ध्यान में रखना है. वी शुड अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर. एंड नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ सोशल नेटवर्क. तो कैसे प्रॉपरली तुम उसको यूज़ कर सकते हो. इसको प्रॉपरली यूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं. नॉर्मली क्या है, जब तुम लोगों का मैं देखती हूँ यूट्यूब में या उसमें सब फॉल्स नेम से खोलते हो. ठीक है, अभी के लिए ठीक है, लेकिन बाद में आफ्टर 18 यू यूज़ योर ओरिजिनल नेम एंड प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी. तुमको आइडेंटिटी उसमें डालना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अभी जैसे मेरे को गूगल जी सूट में हम लोग जब वो कर रहे थे, क्लासेस ले रहे थे, तब मेरे को ओरिजिनल नेम ही चाहिए था, क्योंकि ये आउटसाइडर्स कोई नहीं देख पा रहा है, ये खाली हम लोग के क्लासरूम के अंदर है. सेकेंडली, टू चेक एनी आउटसाइडर फ्रॉम एंटरिंग दैट क्लास वी शुड यूज योर प्रॉपर नेम ओनली. ठीक है. फिर बाकी तो पता